The name of the chapter is Morphology and Anatomy of Angiosperms. Now, now morphology and its importance. First is definition of morphology. The morphology means the study of external features. Yeah, the study of external features is called as morphology. It can also be defined as morphology is the branch of science which deals with the study of form and structure. In in the field of botany, it is generally means the study of external features, forms, and relative positions of different organs and plants. So now it is now now next topic is importance of morphology. Therefore, the first point is the knowledge of morphology is essential for recognition or identification of plants. Second point, certain important criteria for classification of plants are obtained from morphology. Third, it gives information about the range of variations found in a species. Fourth, knowledge of morphology is required for studying various aspects of plant life like genetics, ecology, anatomy, etc. Fifth, plant breeding, crop protection, and crop productivity depend heavily on morphology like number, shape, size, thickness, and orientation of leaves. Example, plant height, number of nodes, number of flowering shoots, flowers, flowers per shoot, fruit set, etc. 6 point, deficiency and toxicity symptoms brings morphological changes to response of excess or shortage of minerals. Audible. A 7 point, juvenile and mature phase are indicated by difference in their morphologies, like, for example, presence of prickles, thorns, leaf shape, size, arrangement. Transition from juvenile to adult phase is accompanied by increased leaf lobing in cotton, ipomia, and definidium. Eighth point, it indicates that structural adaptation to a habitat like succulents, example cacti, acellular leaves, example pinus, meanly coating, example clotropis, abundant hair, reflecting surface like in oleander, vertical leaves like in eucalyptus, texture, color, thickness, and orientation of leaves. 9 point, the plant with morphological peculiarities are adopted by are adopted by horticulturists for growth in lawns, garden, parks and etc. ओवरऑल हम ये समझ सकते हैं कि मॉर्फोलॉजी से हम किसी भी प्लांट की एक्सटर्नल फीचर्स को देख सकते हैं और उसके बेसिस पे उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं. Now it comes now here comes anatomy. What is anatomy? The study of internal features is called as anatomy. Now, importance of anatomy. Now, importance of anatomy. First, anatomy or study of internal structure is useful in knowing the structural peculiarities of different groups of plants. Second point, it indicates the structural adaptations of plants to external stress. Third, anatomy is useful for knowing homology, that is phylogenetic similarity, and analogy, that is phylogenetic dissimilarity. Anatomy has solved many taxonomic problems. It is fifth point. It is useful. It is useful in determining the purity of articles of use daily use like tea, coffee, coca, tobacco, vegetable dyes, spices, saffron, etc. 6 point, in pharmacognosy,
The science that is connected with sources, characteristics, and possible medicinal use. The purity and correct identity of the plant parts is established through anatomy in the field of pharmacognosy. Next, eighth point. Plywood industry depends upon the knowledge of wood anatomy. Eighth point. Wood anatomy helps to differentiate the superior and inferior, standard and substandard or specified, unspecified woods. 9 point. Forensic science employs plant anatomy to identifying pieces of plant matter, sticking of dead bodies and articles used by criminals. तो ओवरऑल हमें ध्यान रखना है कि एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी से हम प्लांट को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. नाउ पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. फ्लावरिंग प्लांट्स के 3 पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. फर्स्ट सीड. सीड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीड के अंदर फ्यूचर प्लांट होता है. सेकंड रेडिकल एंड थर्ड इज फ्यूम्यूल. रेडिकल वो पोर्शन होता है सीड का जो जियोटॉपिकली पॉजिटिव होता है, मतलब अर्थ की तरफ मूव करता है, और प्यूम्यूल वो होता है जो जियोटॉपिक नेगेटिव होता है, जो कि अर्थ से ऊपर की तरफ मूव करता है. तो अभी आप देख रहे होंगे स्लाइड में भी लिखा हुआ है, द रेडिकल गिव राइज टू रूट सिस्टम वेयर एज प्यूम्यूल गिव राइज टू शूट सिस्टम. अब रूट सिस्टम के बारे में हम आगे पढ़ते हैं. What is root system? Now, first of all, there must be a certain definition for root. So the root may be defined as the root is a typically a non-green underground descending portion of the plant axis which give rise to similar types of endogenous lateral branches and does not possess any nodes and internodes. सीधा सा फंडा ये है, वो पोर्शन जो अर्थ के अंदर होता है, जो कलरलेस होता है, जिसके अंदर क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, वो रूट होती है. नाउ व्हाट आर द जनरल फीचर्स ऑफ रूट? फर्स्ट, द रूट इज द डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ द प्लांट एक्सिस which grows downwards in the soil. Second, it is non-green and cannot perform photosynthesis. However, some roots can store organic material. Third, the root apex is subapical in position and generally protected by a root cap. Fourth, the root possesses unicellular root hairs which increase the exposed surface of the roots for absorption of water. अब यहाँ पे इस पॉइंट में ध्यान रखने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रूट्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ एंकरेज का काम करती हैं, और जो रूट के साथ सेकेंडरी रूटलेट्स होते हैं, आपको सेकेंड इमेज में दिख रहा होगा ज्यादा अच्छे तरीके से, इसमें क्योंकि उसमें प्राइमरी रूट एब्सेंट है, उसमें जो हेयरलाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसको रूट हेयर्स कहते हैं, वो ही पानी को एब्जॉर्ब करते हैं. एग्जाम में ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन आता है कि रूट एब्जॉर्ब करता है कि रूट हेयर पानी एब्जॉर्ब करता है. तो रूट हेयर ही पानी को एब्जॉर्ब करता है. रूट का सिर्फ एक ही फंक्शन होता है, या तो या स्टोरेज करेगा या फिर सिर्फ एंकर प्रोवाइड करेगा. एंकर भी जैसा जैसा कि एक समुद्र में जहाज को खड़ा करके रोका जाता है. नाउ आई विल कंटिन्यू फर्दर. फिफ्थ पॉइंट, द रूट्स कैन नॉट डिवाइड. रूट में कोई डिवीजन नहीं होता into nodes and internodes. They do not bear leaves, buds and reproductive organ. तो रूट का होल एंड सोल एक ही फंक्शन होता है, to provide anchorage to the plant. Next point, the point number 6, the lateral branches of roots are endogenous in origin. That is, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, that is they arise from the pericycle. Pericycle को हम जब पढ़ेंगे, जब हम anatomy डिस्कस करेंगे. 7th point, the roots are negatively phototropic, positively geotropic and positively hydrotropic. There are certain words like phototropic, geotropic and hydrotropic. Tropic means movement in plants. Now, phototropic means movement towards light. Geotropic means movement towards earth, and positively hydrotropic means movement towards water. तो रूट के अंदर एक फंक्शन नहीं होता है, इट इज नॉट फोटोट्रॉपिक. इसमें कोई भी फोटोट्रॉपिक मूवमेंट नहीं होता. नाउ as you see, fourth heading is types of root system. There are basically 3 types of root system. यही कहना चाहिए कि 3 ही root system होते हैं. First is taproot system, second is fibrous root system, and third is adventitious root system.
रूट सिस्टम को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि रूट है क्या। बेसिकली एक टर्म आती है प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट वो पोर्शन होता है रेडिकल का जो मेन रूट बनाता है। अगर उसको डिफाइन करेंगे तो ये ऐसा आएगा, द रेडिकल, द प्राइमरी रूट, that is the radical itself grows up directly into main root, and it nearly occurs in all dicotyledonous plants. इसको ध्यान से रखिएगा, ये सब ज्यादातर जितने भी डाइकोटिलिडनस प्लांट होते हैं उनके अंदर मिलता है। अब इसी प्राइमरी रूट से अलग अलग तरीके की रूट्स बनती हैं, जैसे कि टैप रूट सिस्टम हो गया, फिब्रस रूट सिस्टम हो गया एंड एडवेंटिशियस रूट सिस्टम हो गया। अब देखते हैं व्हाट इज टैप रूट सिस्टम। इन टैप रूट सिस्टम द प्राइमरी रूट अलोंग विद इट्स ब्रांचेस इज टर्म्ड इज टैप रूट सिस्टम। अब आप फर्स्ट देखें, यहाँ पे एक मूली लगी हुई है, इस मूली को आप देखिए तो प्राइमरी रूट बिल्कुल सही से जा रहा है, व्हाइट कलर की। इसके बगल में आपको लेटरल ब्रांचिंग दिखाई देगी, इसको बोलेंगे सेकेंडरी रूट्स। ये आपका टैप रूट सिस्टम हुआ। और जो आपका फाइब्रस रूट होगा उसके अंदर जो प्राइमरी रूट होगा वो रिड्यूस हो जाएगा या वो एब्सेंट होगा, आपको इसमें सिर्फ सेकेंडरी ब्रांचेस ही दिख रही होंगी। ओके, एंड थर्ड जो प्लांट होगा, अगर आपको एडवेंटिशियस रूट सिस्टम समझना है तो बहुत बेसिक एग्जांपल है बनियन, बरगद का पेड़। उसमें आपको रूट्स जो अपने मेन पोर्शन से नहीं किसी और पोर्शन से निकलती हैं, ऐसे टाइप को हम इस सिस्टम को बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। तो अगर हम इसको प्रॉपर्ली डिफाइन करेंगे तो टैप रूट सिस्टम क्या होगा, द टैप रूट सिस्टम, द प्राइमरी रूट along with its branches is termed is taproot system. Second is fibrous root system, that is the radical undergoes repeated branching. ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, the radical undergoes repeated branching. This system is called as fibrous root system. And third आएगा adventitious root system, when the root arise in other place than the root system such as stem. हमेशा ध्यान रखिएगा इन तीनों में डिफरेंस एग्जाम में आता ही आता है, कई बार आपको कंफ्यूजिंग करने के लिए भी पूछ लेता है। अब हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। नाउ द रूट इज मॉडिफाइड फॉर ओनली वन फंक्शन। रूट का जो मॉडिफिकेशन है वो सिर्फ एक ही फंक्शन के लिए है, और वो फंक्शन है द फंक्शन ऑफ स्टोरेज। रूट का सिर्फ एक ही फंक्शन होता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो है स्टोरेज। स्टोरेज ही फंक्शन होता है, और सेकेंड उसके बाद आगे का पोर्शन होता है उसको एंकरेज प्रोवाइड करने का। रूट कभी डायरेक्टली पानी एब्जॉर्ब नहीं करती है, रूट हेयर्स के थ्रू पानी एब्जॉर्ब करती है, इसको आप ध्यान रखिएगा। फर्स्ट पॉइंट, पहला आता है कॉनिकल रूट। और व्हाट इज कॉनिकल रूट, अगर आप पहले पहले फोटोग्राफ को देखें या पहली पीपीटी पहली जो इमेज है उसको देखें, तो आपको उसमें एक शेप दिखाई दे रही होगी। जैसे कि आप देखिए ये जो कैरेट है, ये कैरेट एक सिलिंड्रिकल पोर्शन है और उसके बाद आके एक पॉइंट पे आके मिल गई है, बिल्कुल कौन सी बन गई है, जैसे कॉलेज कॉनिकल रूट। इसमें आप देखिए सेकेंडरी रूट्स हेयरलेट्स भी निकल रहे होंगे, बगल में देखिए ये निकल रहे हैं, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। सेकंड आता है फूजी फॉर्म। फूजी फॉर्म में क्या होगा, अगर आप देखिए तो ये बीच में से स्वॉलन है, फूली हुई है, और एंड इसके एब्रप्टली एंड हो गए हैं, ये फूजी फॉर्म हो गया। अब देखिए नैपी फॉर्म। नैपी फॉर्म में क्या होता है, ये ग्लोब की शेप की होती है और उसका एक एंड जो होता है वो पतले से टेपर्स में आके खत्म हो जाता है। ये देखिए पूरी बल्ज हो रखी है और फिर आगे छोटा सा एक टेल सी आ गई है इसमें। और ट्यूबरस फॉर्म, ट्यूबरस फॉर्म जो होता है ये आपकी किसी भी शेप में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम अरबी खाते हैं कड़ासिकोया, या फिर शुगर बीट शुगर जैसे शकरकंदी भी कहते हैं, कोई भी शेप हो सकती है। जस्ट लाइक देख, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कौन सी रूट किस फॉर्म की है। नाउ मॉडिफिकेशन इन टैप रूट्स। मॉडिफिकेशन किस तरीके से किया गया, नॉडुलेटेड एंड न्यूमेटोफोर्स, ये दो टर्म्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। टर्म इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो नॉडुलेटेड प्लांट्स होते हैं, पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि नॉडुलेटेड रूट्स हमें मिलती कहाँ पर है। नॉडुलेटेड रूट्स हमें मिलती हैं हमारी पेपोलिनेसी फैमिली, जिसमें हमारी लेजुमिनस प्लांट्स आते हैं, ये वहां पाई जाती हैं। अब लेजुमिनस प्लांट की खास बात क्या होती है, लेजुमिनस प्लांट्स जो होते हैं वो लेजुमिनस प्लांट्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्शन करते हैं एटमॉस्फेयर से। अब ये नाइट्रोजन फिक्शन हमारे वेरियस काम के फंक्शंस में इंपॉर्टेंट होता है। अब ये नाइट्रोजन फिक्शन होता कैसे, क्योंकि इन प्लांट्स के अंदर रूट्स में एक गोल गोल नोड्यूल्स मिलते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये नोड्यूल्स होते हैं। ये नोड्यूल्स एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन फिक्स करने में हेल्प करते हैं।
और इनके अंदर भी अगर हम इनके नोड्यूल्स को एक सेक्शन काटें तो इस सेक्शन को काटने के बाद हमें ये दिखाई देगा कि इसके अंदर भी एक पिंक कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं लेग हीमोग्लोबिन. इट इज ऑल्सो नोन एज लेग हीमोग्लोबिन एंड कॉल एज ऑक्सीजन स्कैवेंजर. सीडीएस में क्वेश्चन आता है कि नोडुलेटेड प्लांट्स में ऑक्सीजन स्कैवेंजर कहाँ मिलता है, तो हम किसको वो बोलते हैं ऑक्सीजन स्कैवेंजर्स. जिसके अंदर लाइक नोडुलेटेड रूट्स के अंदर जो लाइक हीमोग्लोबिन नोडुलेटेड रूट्स के अंदर जो पिंक कलर का पिगमेंट होता है, इट एक्ट्स एज एन ऑक्सीजन स्कैवेंजर, जिसको हम लाइक हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं. जस्ट लाइक हीमोग्लोबिन इन ह्यूमंस. अब देखिए अगर हम इसके बाद डिटेल में पढ़े तो ये है नोडुलेटेड रूट्स दे अकर इन पेप्लोनिएसी फैमिली और पेसिमिलेसी और लेजुमिनस पेप्लोनिएसी फैमिली और लेजुमिनस प्लांट्स लाइक पी, ग्राम, ग्राउंडनट, soybean, alfalfa, etc. The secondary, tertiary roots, sometimes the primary roots develop into numerous small irregular swellings. आपको बता रहा था ना, इसमें आपको swellings दिख रही हैं. उस प्लांट के रूट में आपको कुछ कुछ डिस्टेंस पे एक इरेगुलर swellings भी बोली swellings हो जाती हैं, छोटी छोटी बॉल्स सी बन जाती हैं, और इन बॉल्स को हम नोड्यूल्स भी कहते हैं और ट्यूबर सेल्स भी कहते हैं. ट्यूबर सेल्स TUBERCLES. ये जो ट्यूबर सेल्स हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन नोड्यूल्स हैं, ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं एटमॉस्फेयर से. और इसके अंदर अगर सेक्शन काटें इसका, तो इसके अंदर एक पिंक कलर पिगमेंट मिलेगा जिसको हम लेग हीमोग्लोबिन कहते हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है नोडुलेटेड प्लांट्स का जो है वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन. नाउ न्यूमेटोफोर्स. न्यूमेटोफोर्स वो रूट्स होती हैं जो आपके मैंग्रोव्स में पाई जाती हैं. आप देख रहे हो मैंने एक इमेज लगाई हुई है, आप लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमेटोफोर लिखा हुआ है. तो व्हाट इज न्यूमेटोफोर्स क्या होती हैं? ये ग्राउंड से बाहर निकलती हैं और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि ये ब्रीदिंग रूट्स हैं किसी भी प्लांट की, या ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरह हमारा लंग्स पर रेस्पिरेशन होता है, वैसे ये प्लांट के लिए रेस्पिरेशन का फंक्शन परफॉर्म करती हैं. अब ये कहाँ मिलेंगी? इंडिया में आपको बे ऑफ बंगाल में, जहाँ पर वो क्या मिलता है, सुंदरी ट्रीज मिलती हैं, हमारे वो हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये वहां मिलता है. अब देखिए व्हाट इज न्यूमेटोफोर्स. न्यूमेटोफोर्स दे आर ब्रीदिंग और रेस्पिरेटरी रूट्स फाउंड which are found in plants growing in mangroves or saline swamp areas near seashore. ऐसा क्यों है? क्योंकि सी शोर में सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है सी शोर के आसपास. इसके लिए फिर ये रूट्स क्या करती है, एक अलग से रास्ता बनाती हैं और ये उसमें प्लांट के लिए एक लंग्स का काम करती हैं जहाँ पे रेस्पिरेशन करते हैं. ये आपको ध्यान, इसमें अभी अगर मैं ब्रीफिंग पूरी दे दूं आपको, एग्जाम में आपके क्वेश्चंस ये आएंगे. अगर कोई बहुत जनरलाइज पेपर होगा तो वो आपसे मॉर्फोलॉजी की इंपॉर्टेंस पूछेगा. उसके बाद अगर किसी को ज्यादा क्रिटिकल कोई चीज पूछनी है तो वो आपसे ये पूछेगा कि व्हाट आर द फीचर्स, जनरल फीचर्स पूछ सकता है आपसे एग्जाम में. इनमें से कौन सा जनरल फीचर है, कौन सा जनरल फीचर नहीं है. और सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है वो आपका ये है, मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट्स. इसमें से क्वेश्चन बहुत बनते हैं. कॉनिकल रूट कौन सी होती है, फूजी फॉर्म कौन सी होती है, नैपी फॉर्म कौन सी होती है,